Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about standard units of measurements. The name of our topic is motion and measurement of distances. और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में, ऐसे यूनिट्स जो इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल होते हैं, जो सभी कंट्रीज़ में कॉमन है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 है, वो खोलेंगे आप तो ये मैं पढ़ना शुरू करूँगा, आप और से सुने। इन एंशिएंट टाइम्स द लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of length, because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions. A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. People also used the foot as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Roman measured with their pace or steps. In ancient India, a small length measurements used were an angul, finger, or a mutti, fist. Even today, we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as a unit of length when convenient. However, everyone's body parts could be of slightly different sizes. This must have caused confusion in measurement. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as the International System of Units, SI units. The SI unit of length is a meter. A meter scale is shown in figure 10.6. Also shown is the 15 centimeter scale in your geometry books. Each meter M is divided into 100 equal divisions called centimeters. Each centimeter has 10 equal divisions called millimeters, mm. Thus, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 centimeter is equal to 10 mm, 10 millimeter. For measuring large distances, meter is not a convenient unit. We define a larger unit of length. It is called kilometer, km. 1 km is equal to 1000 m. Now we can repeat all our measurements activities using a standard scale and measure in SI unit. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring lengths and distances. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट्स के बारे में, तो पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स यानी सदियों पहले जो मेजरमेंट्स के जो मुख्तलिफ यानी
कहेंगे यूनिट्स जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स इस्तेमाल में लाए जाते थे। कहीं पे फुट मेजरमेंट का यूनिट था, कहीं पे विड्थ ऑफ फिंगर थी, यानी हाथ की जो चौड़ाई होती है उंगलियों की जो है, इस तरह कहीं पर स्टेप्स जो हैं वो मेजरमेंट की यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल होते थे। अगर पुरानी जो सिविलाइजेशंस हैं उनकी बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उन्होंने भी अच्छे मेजरमेंट्स का इस्तेमाल किया होगा लेंथ के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो खुदाई जो हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के डिफरेंट साइट्स में, वहाँ पर ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे वहाँ पर बड़ी बड़ी खूबसूरत और वेल डिज़ाइनड कंस्ट्रक्शंस के हमें निशानात मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि उन लोगों के पास बेहतरीन जो है यूनिट्स थे मेजरमेंट्स की। तो इसी तरह जो एंशंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वहाँ पर वो लोग क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे। क्यूबिट क्या होता है? एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक जो मेजरमेंट होती है उसे क्यूबिट कहते हैं। तो वहाँ पर यानी एंशंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कदीम मिस्र की जो तहज़ीब थी वहाँ पर ये लोग क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और कहते हैं कि वो जो यूनिट था मेजरमेंट का लेंथ का वो पूरी दुनिया में भी इस्तेमाल होता था, बाकी लोग भी उसको एक्सेप्ट करते थे। इसी तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों में फुट का इस्तेमाल होता था एज यूनिट ऑफ लेंथ, यानी फुट आज भी हम देखते हैं इस्तेमाल होता है। तो मगर वो जो फुट जो था वो मुख्तलिफ़ ममालिक में उसमें थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट था लेंथ में, क्योंकि हर मुल्क के लोगों का कद जो है जिसामत अलग अलग होती है, थोड़ा फ़र्क होता है। तो ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों के पाँव लंबे होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, तो उसमें स्लाइटली वेरिएशन थी। यानी एक मुल्क का फुट दूसरे मुल्क के फुट से स्लाइटली डिफरेंट था, थोड़ा सा फ़र्क था उसकी लंबाई में। इसी तरह जो एंशियंट रोमन एम्पायर था वहाँ पर भी लोग जो डिफरेंट यानी ये इस्तेमाल करते थे यूनिट्स। तो लेंथ के लिए वो यानी यार्ड जिसे हम गज़ कहते हैं उसका इस्तेमाल करते थे, और वो जो यार्ड था वो बाजुओं से लेकर चिन तक उसकी जो लंबाई थी वो इस्तेमाल होती थी। और वो स्टेप्स जो होते हैं हम जो कदम चलते हैं उनका भी इस्तेमाल करते थे लेंथ मेजर करने के लिए। इसी तरह एंशियंट इंडिया की बात करें हमारे अपने मुल्क की, तो यहाँ पर लेंथ के छोटे छोटे मेजरमेंट्स इस्तेमाल होते थे। जैसे एक होता था फिंगर, जिसे अंगुल कहते हैं, उंगली को कहते हैं फिंगर, यानी एक छोटा यूनिट था अंगुल और या मुट्ठी यानी मुट्ठी का फिस्ट। और आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे जो फूल बेचने वाले लोग होते हैं वो अपनी 4 आर्म को एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इस्तेमाल करते हैं, यानी 4 आर्मों के कोनी से आगे के जो बाजू होता है, तो वो तकरीबन आज भी 4 आर्म जो है कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर उन्हें वो कन्वीनियंट लगता है। तो अब हमने जो डिस्कस की कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता था फॉर मेजरिंग लेंथ, लेकिन चूँकि इंसानों के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक ही साइज़ के नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो इसलिए इससे क्या है कन्फ्यूजन पैदा होती थी मेजरमेंट्स में। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो कदम उठाया गया
वो सबसे पहले फ्रांस के साइंसदानों ने उठाया। तो उन्होंने 1790 में 1790 में एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया मेजरमेंट का, जिसे मीटर कहा जाता है। और फिर पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी यकसानियत लाने के लिए तमाम दुनिया की साइंटिस्ट को उन्होंने यानी ये चीज़ एक्सेप्ट करवाई कि ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं यही पूरी दुनिया में नाफिज़ अमल होने चाहिए। और आज के ज़माने में जो सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं यूनिट्स के, उन्हें कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या शॉर्टकट में SI यूनिट्स भी कहा जाता है। और इसी तरह लेंथ जो है, लंबाई नापने के लिए जो SI यूनिट इस्तेमाल होता है वो है मीटर। और ये जो 10.6 फिगर है आप देखिए, इसमें यहाँ पर ये मीटर स्केल है, इसमें 15 सेंटीमीटर लेंथ है। तो हर एक मीटर जो होता है उसको, यानी एक मीटर को 100 सेंटीमीटर्स में डिवाइड किया जाता है। और इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मीटर का सिंबल है M, सेंटीमीटर्स का है cm। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी सेंटीमीटर से छोटा जो यूनिट है उसे mm या मिलीमीटर कहा जाता है। अब जो लंबी डिस्टेंसेस होती हैं उनके लिए मीटर जो है वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो उसको हम बड़ा यूनिट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं किलोमीटर, जिसका सिंबल है km। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब हम जो हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी यूजिंग डिफरेंट स्केल्स, तो उसके लिए हम वो एक्टिविटीज़ दोबारा कर सकते हैं और उसमें स्टैंडर्ड स्केल का, यानी सेंटीमीटर्स या मीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे।